So, hello students. In this lecture, we will talk about eigenvalue and eigenvectors of a matrix. And obviously, this will be a square matrix. Then only we can talk about the eigenvalue and eigenmatrix because there are determinants involved in this. And we will talk about few theorems related to these eigenvalue and eigenvectors. So I will use both the written notes and the board also. So first of all, the characteristic equation. The CH means characteristic equation. So what is this characteristic equation? Let A be n cross n matrix over a field F. देखो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए क्यों क्योंकि हमें डिटरमिनेंट के बारे में बात करना है और डिटरमिनेंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ठीक है सो then the determinant det means determinant of a minus xin that will be again a matrix a minus xin is said to be the characteristic polynomial of a. So that will be actually a polynomial. So that is called characteristic polynomial. Then the equation determinant a minus xin equal to 0 is said to be the characteristic equation of a. So to calculate the eigenvalue, we need to calculate the characteristic equation. So determinant of a minus xin equal to 0. And since we already said it that determinant of a minus xin is a polynomial, so it will be a polynomial of degree n. So this will be something like c0 x to the n plus c1 x to the power n minus 1 plus dot 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 cn. So since this is the characteristic equation is a polynomial of degree n, so we know that it has n roots. So that those roots are called eigenvalues of that matrix. So we will see the example also, but yeah, later on we will see the example. So first let aij equal to aij, that is the matrix is a11 a12 dot dot a1n, and then this is n cross n matrix. Then the determinant of a minus xin, here there will be a bracket. So the determinant will be determinant of a11 minus x, that is from the diagonal we will subtract x because I is 1 in the diagonal and the rest of the 0. In is identity matrix of order n. So this polynomial will be this type c0 x to the n minus 1 c1 x to the n minus 1 plus dot dot cn, where c0 equal to minus 1 to the power n, जो कांस्टेंट होगा c0 ये होगा minus 1 to the power n, and cr it will be minus 1 to the n minus 1 into sum of the principal minor of order r. So अब यहाँ पे skip करते हैं. So now we'll use the whiteboard. So what it is saying, so if we take some 2 by 2 matrix, let A equal to, say, matrix, we are noting this. So this is 1, 2, let's say 1 minus 1. So this is a 2 by 2 matrix. So if we need to find the eigenvalue, what do we do? So we will calculate determinant of a minus x into I2, since this is I2. So what is this matrix? A minus x I2.
This is nothing but A is this one, 1, 2, 1, minus 1. And this is minus x into I2 is 1, 0, 0, 1. So that's why we can write this matrix. This matrix is 1 minus x, comma 2, and then 1 minus 1 minus x. So here, because this is actually nothing but 1, 2, 1 minus 1 minus x will multiply everywhere, x 0, 0, 1. Then we do the subtraction entry wise. So this is it. So now the determinant of a minus x I2 is equal to determinant of this one, 1 minus x, 2, 1 minus 1 minus x. So what is the determinant? This into this, yani 1 minus x into minus 1 minus x, or minus 2. Multiply this 2 and minus 2. We know it from earlier also. So if we take common minus 1 from the second one, so it will be 1 minus x into 1 plus x minus 2. So this is nothing but, see, 1 a minus b into a plus b formula. So 1 minus x square minus 2. That is x square minus 1 minus 2, that is x square minus 3. So the characteristic equation, क्या हो जाएगा, ये Yeah, we know that determinant of a minus x I2, this is I2 equal to 0. That means characteristic what we get, this one. So x square minus 3 equal to 0. So implies x equal to क्या है, plus minus root 3. So these are the eigenvalue of the given matrix, this one. So this is one thing. Another thing, actually, when we took the general form, this is a particular example. So when we took A equal to Aij n cross n, we know that this is nothing but the matrix A11, A12, dot dot dot, A1n. So A21, A22, dot dot dot, A2n. And here also dot an1, an2, dot dot ann, because this is n cross n matrix. So a minus x in will be nothing. Only thing we have to subtract x from the diagonal entry only. A1n, A21, A22 minus x, dot dot A2n, dot dot an1, an2, dot dot ann minus x. Yeah. So when we write this one, determinant of a minus x in, we have written in this form. This is c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus cn. Where we have written c0 equal to minus 1, c0 equal to minus 1 to the power n. ये माइनस 1 टू द पावर n क्यों होगा, क्योंकि सी नॉट क्या है, x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट, तो x टू द पावर n कोएफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, ये जो डायगोनल जब एंट्री मल्टीप्लाई होगा तभी मिलेगा. तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सो इट टू द माइनस 1 टू द पावर n. एंड अनदर थिंग इट वाज रिटन लाइक CR is equal to minus 1 to the power n minus r, sum of all principal minor of order r. यो प्रिंसिपल माइनर क्या होता है, देखो ये जो होता है डायगोनल एलिमेंट, ये 1 1, ये सब डायगोनल एलिमेंट है. सो अगर हम 2 क्रॉस 2 प्रिंसिपल माइनर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक
प्रिंसिपल माइनर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी ये 1 1, यानी डायगोनल में जो माइनर लेंगे उसका डायगोनल में ये जो डायगोनल एंट्री आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। अगर 1 क्रॉस 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक, यानी ये 1 1 हो जाएगा 1 ऑर्डर का प्रिंसिपल ऑर्डर, अच्छा प्रिंसिपल माइनर, क्योंकि प्रिंसिपल एलिमेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे ऐसा मतलब टोटल कितना होगा, ये 1 ऑर्डर का ले रहे हैं यानी उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, ये 1 1 ये 1 2 डॉट 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 ये n n यही रहेगा। उसीलिए यहाँ पे क्या किया है, ये जो C1 लिया है, C1 इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 इंटू ट्रेस ए लिखा है। ट्रेस ए इज नथिंग बट इक्वल टू दिस वन, ये 1 1 प्लस ये 2 2 प्लस डॉट 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 ये n n। सो ट्रेस यानी डायगोनल का जो सम है वही होगा। जैसे so this is true because if we see in the previous example what we got, our in the last example we have 1 2 1 minus 1 I think, yes। so trace a क्या है, trace a is equal to, this is trace TRACE, शॉर्ट फॉर्म है इसका TR ऑफ ए। ये क्या है, एंट्री, इस ये जो डायगोनल एंट्री है उसका सम है, यानी 1 प्लस ऑफ -1 यानी 0। सो जहाँ पे हम लोगों ने ये किया था, ये क्या है, C1 है। C1 क्या है, मतलब हम लोगों ने लिखा था तो C, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का है, C0x स्क्वायर C1x प्लस C2। तो C0 क्या था, C0 इक्वल टू, एक्चुअली ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये एक्चुअली उस मैट्रिक्स के लिए था क्या, x स्क्वायर -3 आई थिंक था ना, यानी C0 इक्वल टू 1 है, C1 इक्वल टू 0 है, C2 इक्वल टू -3 है। C0 का फॉर्मूला क्या था, -1 टू द पावर n, यहाँ पे n क्या था, -2 इक्वल टू 1 आ गया, तो वहां से भी आ गया। C1 क्या था, -1 टू द पावर n-1 ट्रेस ऑफ ये, सो ये क्या था, -1 टू द पावर n-2 -1 ट्रेस ए यानी 0, तो ये 0, तो देखो C1 भी 0 आया था। और C2 क्या था, C2 is nothing but -1 to the power n-2 sum of principal minor of order 2। यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है तो इसका 2 ऑर्डर का माइनर एक ही होगा, 1 2 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो -1 और -2 एंड -3, तो देखो C2 इक्वल टू -1 आया था। और ये क्या है, ये -1 टू द पावर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू उधर -3, तो ये -3। तो दिस इज द थिंग, इट इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म इन द नोट्स। सो हाँ, यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मैट्रिक्स 3x3 क्रॉस का रहेगा, ऐसे भी अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख के करेंगे तो भी सही है, बट अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मान लो जैसे 1 0 2 2 3 1 1 3 2, तो इसका 1 ऑर्डर का माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो जाएगा, 1 R अब हो जाएगा 1 3 और 2, कहाँ से मिला, ये और ये। अब ऑर्डर 2 का माइनर ऑर्डर 2 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा यानी 1 0 2 3 एंड ये क्या हो जाएगा, और देखो ये हो जाएगा माइनर यानी 3 1 3 2, यही 2 होगा। सो
माइनर हम समझ गए, प्रिंसिपल माइनर यानी उसका डायगोनल में डायगोनल एंट्री ही रहेगा. सो नाउ वी गो टू द लेक्चर अगेन. कंट्रोल व्यू full screen mode. So the so to find an eigenvalue, we have to calculate this determinant of a minus xin. This is nothing but this one. So for calculating this, we don't have to worry about these things. We just calculate the determinant of this matrix as we know. We uh, we know from the intermediate. So and the Cn, the constant Cn will be the actually determinant of A. Cn is nothing but the principal minor of order A. So if the matrix is of order n, then there will be only one minor of principal minor of the determinant. So that is nothing but the determinant of that matrix. So that will be determinant of A. So actually there are actually two things also. Because I have not, I already taught in the class the theory of equation, so that's why those who have attended they can understand. Those who have not attended they cannot understand. So we'll just again at the end of this I will recall that. So the next theorem, what is that? Cayley-Hamilton theorem. What it is saying? Every square matrix satisfies its own characteristic equation. ये क्या बोल रहा है? हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यानी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन C0x⁴n C1x⁴n -1 प्लस डॉट 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 Cn होता है, तो अगर x के जगह a पुट कर देंगे वो एक्चुअली मैट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा. तो इसमें प्रूफ क्या है? लेट डिटरमिनेंट ऑफ a minus xin is C0x⁴n plus C1x⁴ minus n1 minus 1 plus dot 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 Cn. तो ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए ये वाला जो नोटेशन है वो यूज होगा, पर प्रॉब्लम करने के लिए ये यूज नहीं होगा. So a minus xin is a matrix. Obviously this is a matrix of polynomial in x of degree 1. अच्छा, एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, जो a माइनस एक्स आई एन ये क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा. इसका जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? वो होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा या तो फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है. जैसे यहाँ पे हम यहाँ से देख सकते हैं. एक्चुअली ये देखो, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1, ये पॉलिनोमियल डिग्री 1. अब बाकी सब जो है ये है कांस्टेंट है. इसको पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 भी बोल सकते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा है. सो एडजॉइंट a माइनस एक्स माइनस वाई एन, इसका जो एडजॉइंट होगा इज ए मैट्रिक्स ऑफ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n माइनस 1. क्योंकि देखो इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हम कैलकुलेट करेंगे इसका एडजॉइंट. सो एडजॉइंट में क्या होता है? ये एडजॉइंट में क्या करते हैं? हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं. तो देखो अगर कोई एक एलिमेंट का, ये एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर लेंगे तो ये क्या करेंगे? इसको और इसको हटा देंगे, बाकी उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे. तो इसमें कितना होगा? मैक्सिमम n-1 ही x होगा, क्योंकि एक x तो हटा दिए. तो वो इसीलिए एडजॉइंट ए में polynomial of degree n-1 होगा. Since each element of adjoint A is a polynomial in x of degree at most n-1, maximum n-1 होगा. बाकी अगर सिर्फ कांस्टेंट हो जाए उससे कम भी हो सकता है. So let a minus adjoint of a minus xin is this type b0x⁴n-1, क्योंकि हमने बोला है जो ये डिग्री n-1 का होगा. So adjoint of a is equal to b0x⁴n-1 b1x⁴n-2 plus dot 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 bn-1, where each bi is an n cross n matrix.
क्योंकि देखो जिसका हम इसको एडजॉइंट ए का कैलकुलेट करेंगे, यानी हर एक एलिमेंट का जो ये है को फैक्टर वो कैलकुलेट करेंगे। हर एक क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। तो हम एक्स टू एन माइनस वन जिसमें जिसमें है उसको लेके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, तो ये हो जाएगा। नाउ इसके साथ अगर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू हमें पता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन मैट्रिक्स। देखो देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसका प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू आई एन इज एन क्रॉस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये जो एडजॉइंट ए माइनस एक्स आई माइनस एन ये है क्या है, हमने माना है ये है बी जीरो एक्स टू एन माइनस वन प्लस बी एन। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई एन, दिस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। So this is c0 x to the n plus c1 x to the n minus 1 plus dot dot cn into in है। तो देखो ये मैट्रिक्स का इक्वेशन है, इधर भी मैट्रिक्स है इधर भी मैट्रिक्स है। सो इसको अगर हम तोड़ देंगे तो ये इंटू दिस माइनस बी इंटू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सो इक्वल टू दिस वन। अब देखो यहाँ पे भी x to the n है मैक्सिमम, इधर भी x। सो if we compare the coefficient from the both sides, यहाँ पे x to the power n का कोफिशिएंट कहाँ पे है, इसी में है सिर्फ, और यहाँ पे c0 है, यानी माइनस बी जीरो इक्वल टू c0। अरे एक्स एन माइनस वन कहाँ पे है, यहाँ पे देखो b1 यहाँ पे है और इधर ए बी नॉट, ये दोनों जगह से आएगा। तो what we will get is this one, माइनस बी जीरो इक्वल टू c0 इंटू आई एन, ये बी जीरो माइनस बी वन इक्वल टू सी वन इंटू आई एन, सबके साथ आई एन लगा रहेगा। ये बी वन माइनस बी टू इक्वल टू सी टू इंटू आई एन, डॉट डॉट ऐसे करते करते आ जाएगा ये बी माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन इक्वल टू सी एन माइनस वन आई एन। एंड लास्ट वाला आएगा यानी कांस्टेंट जो आएगा ये इंटू बी एन माइनस वन। देखो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा कहाँ से कांस्टेंट आ रहा है। देखो कांस्टेंट कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे एक्स है, कांस्टेंट सिर्फ यहाँ पे है, यानी जिसके साथ कोई एक्स जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो क्या है ये इंटू बी एन माइनस वन, और इधर क्या है सी एन। सो दोज टू विल बी इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पहला इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एन से, दूसरा को ए एन माइनस वन डॉट डॉट डॉट, इसको ए से और इसको आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन बी नॉट, और ये भी क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन बी नॉट। अरे देखो ये इसको अगर तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे तो ये देखो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ऐसे सिर्फ एक ही बचेगा। मल्टीप्लाइंग बाय ए एन ए माइनस वन ए एन आई रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग वी गेट, देखो ऐड करके ये मिल जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इक्वल टू ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी जीरो ए टू द एन प्लस सी वन ए टू द एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट सी एन इंटू आई एन। देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ पहले के साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला करके करके कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ जीरो रहेगा, और इधर ये रहेगा सी जीरो ए टू द एन प्लस सी वन ए टू द एन माइनस वन प्लस सी एन आई एन इक्वल टू जीरो। सो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो सी जीरो एक्स टू द एन प्लस सी वन एक्स, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। एक्चुअली एक्स के जगह हम देखो आई लेके आ गए सिर्फ, तो ये इक्वल टू जीरो हो गया। तो यही बोल रहे हैं, यही है उसका थ्योरम, यानी ये जो मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही है। अप टू दिस इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। नाउ यहाँ से एक चीज हम कर सकते हैं, कभी कभी बोलता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करो, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है जे सो दैट फॉर दिस मैट्रिक्स कैले-हैमिल्टन थ्योरम इज ट्रू, दैट इज पहले उसका हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद ए एन पुट कर देंगे, ए एन यानी सी जीरो टू द एन, उसको कैलकुलेट करके दिखा देंगे हाँ जीरो है। वहां से बोल रहे हैं फ्रॉम देयर वी प्रूव फाइंड द ए इनवर्स, डायरेक्ट ए इनवर्स नहीं। तो यहाँ पे देखो हम अगर सारे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड का, तो ये क्या आ जाएगा सी जीरो एन माइनस वन सी वन ए एन माइनस टू, यानी एक एक करके घट जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा सी एन ए टू द एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो हो जाएगा सी एन ए टू द एन माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसको उस साइड लेके जाएंगे और सी एन से डिवाइड कर देंगे तो यही हो जाएगा ये ए इनवर्स। सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड
the eigen, not eigen, A inverse also. So using एग्जाम में दो चीज देता है, या तो फिर बोल देता है जो प्रूव द कैली हैमिल्टन थ्योरम, या फिर बोलता है कोई एक मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है जे फॉर दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट द कैली हैमिल्टन थ्योरम इज ट्रू एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। सो ये अगर दिया होगा ये वाला कैलकुलेट करके दिखा देंगे, हाँ वो 0 आ रहा है, एंड उसके बाद ए इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। And what is the eigenvalue of a matrix? A root of the characteristic equation, that is determinant of A minus xin equal to 0, is said to be eigenvalue. पहले मैंने बता चुका हूँ आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले उसका ये निकालेंगे, उसका 0 करेंगे, वो उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो जो x का वैल्यू आएगा वही उसका आइगन वैल्यू। यही मैं बोलना चाह रहा था इससे पहले, जो मैंने बोला था जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी जितना सारा आइगन वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर का होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का होगा, यानी उसका रूट n ऑर्डर का होगा, n रूट होगा। उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसका जो ऐड होगा वो क्या होगा, वो नथिंग बट ट्रेस ऑफ ये होगा। क्यों, क्यों देखो यही थ्योरी ऑफ इक्वेशन था। ये भी n क्रॉस n मैट्रिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बी c0 x to the n plus c1 x to the n minus 1 plus dot dot cn equal to 0, जहाँ पे c0 इक्वल टू हमें क्या पता है -1 to the n, cn इक्वल टू पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑल्सो c1 हमें पता है, c1 इक्वल टू है -1 to the n minus 1 into ट्रेस ऑफ ए। तो देखो ये अगर इस टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसका जो रूट होता है, इसका n रूट होगा, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n रूट है, तो उसका सम क्या होगा, उसका सम होगा माइनस इसको c1 बाई c0, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा -1 to the n cn बाई c0। तो इसीलिए द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1 to the n cn बाई c0। जो लास्ट का जो कोएफिशिएंट है देखो वो बाई द फर्स्ट का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा देखो -1 to the n क्या होगा c0 इक्वल टू -1 to the n है, तो -1 to the n कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू cn हो जाएगा, cn इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a। सिमिलरली सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ c1 बाई c0, तो -1 बाई c0 क्या है, ये c0 है -1 to the n, और c1 क्या है -1 to the n minus 1 इंटू ट्रेस ऑफ ये, सो -1 to the n minus 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 to the n, ये भी -1 to the n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ ये। यानी अगर आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका जोगफल क्या होगा, वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका जो डायगोनल एंट्री है उसका जितना सम होगा उसका बराबर होगा, और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये यूज होगा कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्प करता है। अब देखो दो थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं दिया है क्योंकि ये डिटरमिनेंट मतलब एग्जाम में नहीं आता है। इफ ये इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी क्या है, उसका डिटरमिनेंट 0 है, सो 0 इज एन आइगन वैल्यू, 0 एक आइगन वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या बोले हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इस केस में सिंगुलर मैट्रिक्स में केस में क्या है 0 हो जाएगा। यानी अगर मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, एक्चुअली आइगन वैल्यू को λ1 जनरली λ1 λ2 λn से डिनोट करता है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है 0 है, इसके मतलब क्या है कोई ना कोई एक तो आइगन वैल्यू 0 होगा ही, तो इसलिए सिंगुलर मैट्रिक्स के केस के लिए एक आइगन वैल्यू एटलीस्ट 0 होगा। द आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट। ये तो क्या है, अगर मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी डायगोनल में कुछ नॉन जीरो वैल्यू दिया है बट हर एक में 0 है,
तो उसका ये भी सिर्फ आइगन वैल्यू भी ये होगा। क्यों होगा हम बाद में बताएंगे। तो बट यू शुड remember this. This is one theorem. This is an important theorem also. If lambda be an eigenvalue of a non-singular matrix, यानी कोई अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका अगर एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा इनवर्स यानी या फिर बोल सकते हो 1 बाय लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का एक आइगन वैल्यू 1 by lambda होगा। So we have to prove this. So by definition we will go. So let order of A be n, क्योंकि हमें चाहिए होगा since A is non singular so A inverse exist। देखो A inverse exist करने के लिए नॉन सिंगुलर जरूरी है, तभी होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑल्सो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों? अगर सिंगुलर होगा तभी एक जीरो होगा, नहीं तो नहीं जीरो होगा। सो लैम्डा इनवर्स यानी 1 बाय लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, सो ये वाला सेटिस्फाई वो जो लैम्डा है ये माइनस लैम्डा एन इक्वल टू जीरो, यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई एन, यानी एक्स के जगह अगर लैम्डा पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ हम लोग देखेंगे ये वाला कैलकुलेट करके जीरो आ रहा है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि हमें बोला गया कि क्या जो 1 बाय लैम्डा ये इनवर्स का रूट होगा, मतलब आइगन वैल्यू होगा। ये आइगन वैल्यू है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? एक्चुअली वो ये डिटरमिनेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ये इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स आई एन, ये अगर जीरो प्रूफ कर देंगे यानी लैम्डा इनवर्स उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक रूट है। सो देखो ये माइनस लैम्डा इनवर्स आई एन इस इसको तो कहा हम लोग एक्चुअली डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी एक है जिसका दिस इक्वल टू हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, इधर भी मल्टीप्लाई किया और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किया। एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सो इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे गुना किया। सो इधर ये तो रह गया, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इनवर्स ए। सो ये ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों से अगर लैम्डा इनवर्स कॉमन ले लेते हैं वो एक्चुअली बाहर आएगा लैम्डा इनवर्स टू द पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाएगा लैम्डा एन माइनस ए। सो ये सब तो कांस्टेंट है, और ये क्या है? ये माइनस लैम्डा आई एन इक्वल टू जीरो है, तो ये पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, ये वाला जीरो है यानी लैम्डा इनवर्स ये इनवर्स का एक आइगन वैल्यू हो जाएगा। आइगन वेक्टर किसको बोलते हैं? आइगन वेक्टर let A be n cross n matrix over a field F। इन जनरल ये एक्चुअली आर ही होता है, रियल नंबर होता है। ये नॉन नल वेक्टर यानी जो कंप्लीटली जीरो जीरो नहीं होगा। X belongs to V and F is said to be an eigenvector of A if there exists a scalar lambda of F such that Ax equal to lambda x। अगर हमारे केस में Ax equal to lambda x हो जाता है तो उसको बोलते हैं, ये जो x मिलता है इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। यानी इसको अगर इधर इस साइड में करेंगे तो ये माइनस लैम्डा एन एक्स इंटू जीरो। सो देखो दिस इज ए सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन विथ एन वेक्टर हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्योंकि देखो इसका जो मैंने बोला कि ये नॉन नल है, यानी ये एटलीस्ट एक, ये क्या है? एक वेक्टर है ऑफ n क्रॉस 1। सो इसमें एक एटलीस्ट एलिमेंट नॉन जीरो है। ये पूरा
दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एन इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, ये जो हमने कोई भी एक लैम्डा से शुरू किया था, ये स्केलर लैम्डा, वो एक्चुअली नथिंग बट ए आइगन वैल्यू। यानी हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ऐसा मिल सकता है जिसके लिए ये x इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। तो ये जो x है इसको बोलते हैं लैम एक्स आइगन वेक्टर। So we will see the examples in the next lecture. So if you have any doubts, so you can contact me. So another thing is actually this one. I will actually what we have done is this one for the here it was like determinant of A inverse माइनस लैम्डा इनवर्स इंटू आई एन, ऐसा था। इसमें हम लोगों ने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पहले मल्टीप्लाई किया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि देखो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, कर ही सकते हैं इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स आई एन, ये किया था। एक्चुअली अब ये दोनों को हम एक साथ कर दिए थे, क्योंकि हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसलिए ये दोनों को हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, अच्छा इनवर्स यानी ये तो रियल नंबर है तो इसके 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या कर दिए डिटर्मिनेंट ऑफ, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, ये इनवर्स माइनस लैम्डा इनवर्स, ये देखो ये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिख देते हैं, और यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ये इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एन हो जाएगा माइनस लैम्डा इनवर्स ये हो जाएगा। दिस इज 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू देखो डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ से अगर हम लैम्डा इनवर्स कॉमन ले लेते हैं ये हो जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा ये माइनस लैम्डा इनवर्स आई एन, लैम्डा इनवर्स नहीं ये सिर्फ लैम्डा हो जाएगा, तब ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। अब देखो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ये इंटू डिटर्मिनेंट से कोई भी चीज बाहर आएगा वो माइनस एन क्या आ जाएगा, एक नहीं, इसमें जस्ट कॉमन नहीं ले सकते, इसमें माइनस एन, क्योंकि हर एक रो से एक एक कॉमन जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये माइनस लैम्डा आई एन, क्योंकि लैम्डा इसका रूट है तो ये 0 हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट टोटल 0 हो जाएगा। तो यही है इसका प्रूफ, लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू। So I'll stop here. So in the next class we will see the examples of this.